हाँ, लोगों में बड़ी ये मान्यता है कि वो बकरे काटते हैं देवता को खुश करने के लिए, उनका रिलीजियस बिलीफ है। ऑफ लेट फिर वो बैन लग गया स्लॉटर पे, तो उन्होंने वो जिंदा बकरे नदी में फेंक दिए। Wow. भाई विच गॉड आर यू प्लीजिंग, ये जानवर को ऐसे? What God would want you to do this? Allowing crackers for हाँ, Diwali? वो के पटाखे जलाए जा सकें, इसके लिए सीएम इज आस्किंग द सुप्रीम कोर्ट के अलाउ करो। क्यों? क्या लोगों को क्या ये है अरे क्रैकर्स पटाखे फोड़ने? जलाने के लिए तुम्हें रोकना चाहिए। अब जिस देश में इतने रेप्स हो रहे हैं, इतने रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, महामारी आए दिन जब फैलती रहती है, इतने सारे लोग बेरोजगारी के कारण सुसाइड कर रहे हैं, इतनी सारे इश्यूज हैं, आपको ये कुत्ते दिख रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या। तुम हिंदुत्व के पक्ष में नहीं हो, तुम हो सिर्फ अपने उस बिलीफ के पक्ष में जो तुम्हें पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज ने बेच दिया है कि अगर ये मुसलमान का बच्चा है तो इन्हें तो मरना ही चाहिए ऐसे। नहीं, हमने इसी पॉडकास्ट में ये भी बोला है कि मुसलमान को बकरा नहीं काटना चाहिए, लेकिन हम इसी पॉडकास्ट में आपके सामने ये भी बोल रहे हैं कि जो मुसलमान के बच्चे मर रहे हैं गाजा में, वो बहुत बहुत हॉरिबल है, बहुत गलत है। फिर जब मैं ये डॉग्स वाले मैटर में बोल रहा था तो फिर लोगों ने मुझसे पूछा, तू कुत्ते तो बचा रहा, लेकिन ये बता तू वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? सो आई थॉट, आई आस्क्ड माई सेल्फ, यार अब इसका मैं क्या जवाब दूँ? मैं Hey guys, welcome to Kindness with Amy. Today I'm joined by Sandeep Sharma, who is an Indian stand-up comedian known for his razor-sharp wit. Originally, he was in Delhi as a writer and a voiceover artist, and he has made his way to Mumbai, where he is celebrated as a hilarious stand-up comedian. Welcome, Sandeep. It's so good to have you. थैंक यू एमी। So, Sandeep, tell me, where are you from and how did you get into comedy? आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। So am I. दैट्स अ वेरी यूनिक एक्सेंट। ये वाला एक्सेंट ये यूपी में कहाँ बोल स्पेशल रहे यूपी वाला एक्सेंट है। नहीं, I'm from Allahabad. My mom's side is from Allahabad, but my dad is Australian. So yeah, I have that side. And people comment on my posts and everything, and they're like, "क्या ये fake वाला accent लेके आ गई है?" I'm like, "Fake? अरे नहीं है यार, यही है, मैं क्या करूँ, यही है." Anyway, please continue. So I'm from Bareilly, Okay. Uttar Pradesh, born and brought up there. I did my graduation from there. Then I came to Delhi to become a voiceover artist, and I wanted to act. I came there and I got to know that at the age of 21, your voice is neither of a totally like a man, nor is it a boy. It's somewhere in between. Your voice is still cracking. Some boys get that baritone. I didn't at that time. So then I did some odd jobs in production. I assisted people in ad films production and Okay. some shootings here and there. Huh. And then I was a writer with BBC World Service Oh, Trust. wow. Okay. Yeah, for an AIDS awareness show called Jasoos Vijay, where actor Adil Hussain was the main lead. And then I used to do voiceovers for Vivid Bharati dramas. And I did production work in Amir Khan's movie Mangal Pandey, Oh, The wow. Rising. Yeah. Okay. So that I did. So I used to do these odd production jobs and writing, and then I was a writer with radio and voiceovers, and I did some 1500 or 2000 radio dramas. Oh, wow. Okay. Yeah, so I was an actor, but behind the mic, not in front of the camera. हाँ, तो फिर ये स्टैंड अप वाला कहाँ से आ गया मिक्स में? मैं रेडियो में एक्चुअली कुछ एक उसको स्पार्कलर बोलते हैं, जो 1-1.5 मिनट का कुछ फनी बिट आता है ना बीच में, सम फनी वॉइस दे मेक. सो आई वाज अ राइटर फॉर एड्स. एक्चुअली आई वाज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, फ्रीलांस वॉइस ओवर आर्टिस्ट फॉर ऑल इंडिया रेडियो. ऑल दीज प्राइवेट स्टूडियोज यूज्ड टू मेक ड्रामास. So, but then the recession came in 2008, that Lehman Brothers wala. And then I had no money. And I called up a friend. I said, all the dramas and everything has dried up in the market. And he had joined as a creative director in a radio station. He said, come here, I'll give you a job. I'd never done a job. Wow. Like 3-4 months I had done some job on contract, but never like a job. But that job I did for 9 months. That's the maximum I have stayed in one place. Okay. Okay. So that job, when I was there as a writer, I used to write ads for builders. Like, oh, there is so much pollution in the city. Where do we go? Oh, come to this heaven.
हाँ. on the highway, just 20 minutes from the city center. Hmm. So those kinds of radio ads I used to write. So then my boss in that radio station one day he said that there is a joke series we are starting. Will you give your voice for it? I said okay. We tried that and then it started doing well. Hmm. So then there was a colleague who was an RJ and he used to go for open mics and he said, open mics are happening. I said, what is that? What is open mic? He said, open mics are places where you go and you basically are given a few minutes on stage and you tell jokes and if they like, then you get more work. And I Hmm. went there and I did well, thankfully. And Hmm. so then I met other people who were doing comedy and I said, Hmm. wow, this is nice. Like there's recognition, you're performing and people are able to see you. Because before that, if I told anybody in Delhi Metro while traveling that, oh, have you heard those jokes, that series, or you've heard those radio ads, that's me, they would say, oh, wow. But this had never happened that they saw me and they said, they looked at me and said, Are, we know you. That happened after stand up. Acha, okay. But this was still 2010. My Um, first video came in 2017. So the hmm. recognition by face that came after 2017. So mainly वो YouTube के कारण ये हुआ, you would मतलब say. काम तो मैं बहुत पहले से कर रहा था. मेरा पहला वायरल रिकॉग्निशन किसी ने देखा और कहा कि अरे तुम्हें जानते हैं. Hmm. That happened 17 years after I started working. Oh wow. So, Oh my God. so I saw any kind of fame at the age of 38. Yeah. Before that, it was all audio. Yeah. But yeah, but I was working in this only, that हाँ. reading, writing, expressing. This Hmm. was my world altogether. Wow. I Also, can't even imagine like जो हम आपसे पहले कह रहे थे स्टेज पे खड़े होना, जोक्स बोलना. I think I would be terrible if I even tried. So I'm so impressed जब लोग ऐसा कर भी सकते हैं, like to be quick-witted and think on your feet और पहले से ये jokes लिखना. And I'm like इन्होंने सोचा भी कैसे इसके बारे में बात करना. But then it's also इतना relatable भी होता है. But then you know it's very cool. It's a cool job I think to have. thank you. Yeah. What you are doing is very cool. You are making people aware about being kind and, you know. I mean, I'm trying, but also मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा मैं सीख रही हूँ, उतना ही मुझे realize हो रहा है कि like how effed up the world is also. So वो थोड़ा जो भी optimism है, वो धीरे-धीरे pessimism की तरफ जा रहा है. That's just with age, I guess, and also just life experiences. No, that's actually with I have an example, a couple of examples of that Hmm. with Mirza Ghalib, if you heard, शायर थे. हाँ. तो बहुत सारे शायर बैठे हुए थे. तो एक दिन उन्होंने कहा यूं तो और भी हैं सुखनवर ज़माने में कई अच्छे, यानी शेर कहने वाले सबके सामने कह रहे हैं एरोगेंटली. Hmm. बहुत पॉजिटिव थे वो उस दिन कि यूं तो और भी हैं ज़माने में सुखनवर कई अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और. Hmm. मतलब तुम सब अच्छे हो लेकिन मेरी तो बात ही और है. हाँ. एंड द अदर डे ही वाज इन अ कंप्लीटली ऑपोजिट मूड. शराब पी के नाली में पड़े हुए थे हाँ. दिल्ली में. तो किसी ने कहा, "अरे इतने बड़े शायर आप यहाँ ऐसे इस हाल में?" तो कहते हैं कि गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं. मतलब मुझे खस्ता हाल आदमी के बगैर, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों. मतलब क्यों रोऊं मैं और क्या हाय हाय करना. आई एम नथिंग. लाइक देयर इज Yeah. वन with the greatest of all time boxer Muhammad Ali. Hmm. So on one side when he beat Sonny Liston, the world champion that time, and he beat other champions, and he used to say, I must be the greatest. I am the greatest of all time. I'm the poet. I'm the prophet. I'm the resurrector of the boxing world. And some other day he was in some other mood. And somebody asked him about himself. He said, I'm just another nigger who's trying to get bigger. We'll mute that word. But he Beep, said it. beep. हाँ. He said it. I did. Wow. So Yeah. it's with everybody. You are on one day, on a good day you are here, ऐसे ही होता है. Yeah. and another day you are
completely. Yeah, just a Yeah. matter of perspective, I Yeah. guess. Yeah. सो हमने आपके काफ़ी वीडियोस देखे हैं ऑनलाइन जहाँ पे आई फील आप बहुत आउटस्पोकन हैं व्हेन इट कम्स टू सो मैनी थिंग्स एंड मोस्ट रिसेंटली मैंने आपका देखा था आई वर वेरी पैशनेट अबाउट डॉग्स एंड आई वांटेड टू नो योर थॉट्स कि अभी जो हुआ था दिल्ली में कुत्तों के साथ आपका क्या थॉट्स है इसके बारे में? पहली बात तो ये है कि कुत्ते जो है प्रकृति का हिस्सा हैं हम्म और हमें प्रकृति से पहले ही हमने जितनी छेड़छाड़ कर दी है, हमें उसमें और छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब जिस देश में आप ये कह रहे हैं कि आप कहीं भी इंस्टाग्राम पे किधर भी एक सर्वे कर लीजिए विमेन सेफ्टी के लिए, लोग दिल्ली एनसीआर को हमेशा वर्स्ट जगह बताते हैं, वर्स्ट राइट? अभी मैं थी वहाँ पे हाँ, दी वर्स्ट है ना? हाँ तो अब जब जिस जगह को लोग ऑलरेडी वर्स्ट बताते हैं विमेन सेफ्टी में, विमेन सेफ्टी के आदमी की भी कोई किसी की सेफ्टी नहीं है, औरत की नहीं, आदमी की भी नहीं है वहाँ सेफ्टी, ठीक है? हम्म अब जब जहाँ पे ना तो रोड पे लोग गाड़ियाँ उल्टी सीधी तरीके से चला रहे हैं, विमेन सेफ्टी की का इशू है, महामारी आए दिन जब फैलती रहती है, मच्छर डेंगू वेंगू ये सब होता रहता है, जब इतनी सारे इश्यूज हैं और इतने रेप्स हो रहे हैं, इतने रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, आपको ये कुत्ते दिख रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या? और हम्म सबसे बड़ी आपकी समस्या ये है? हम्म मतलब जहाँ पे कितने सारे लोग बेरोजगारी के कारण सुसाइड कर रहे हैं देश में, आप कह रहे हैं वहाँ सबसे बड़ी समस्या कुत्ते हैं? जहाँ रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहाँ ये समस्या है? अभी अभी आज मैंने देखा है वीडियो सफदरजंग हॉस्पिटल का दिल्ली का, कि एक लड़की ने वीडियो बनाया, एक बेड पे 2 मरीज लेटे हैं। हाउ कैन यू पुट 2 पेशेंट्स इन 1 बेड? वो वाओ एक के इन्फेक्शन से दूसरा मर जाएगा, किसी को कुछ ऐसा हुआ, वाओ इम्यूनिटी लो है, 2 बेड पे पड़े हैं और वो लड़की के साथ जो पेशेंट है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है। उसने कहा ये वीडियो बनाऊंगी तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मुझे और ये पेशेंट को निकाल के बाहर फेंक देंगे। हम्म तो ये है आपकी पहली प्रायोरिटी। मैं इन इश्यूज़ पे बोलता हूँ, वहाँ किसी ने लिखा कि कहाँ समस्या है देश में, तुझे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, थार के लिए तो वेटिंग चल रही है। मतलब एक माय 4 गॉड व्हीलर गाड़ी की वेटिंग उसको वो दिख रही है, उसे ये नहीं दिख रहा कि हंगर इंडेक्स में टॉप पे चल रहे हैं हम। या ये नहीं दिख रहा है कि हॉस्पिटल के बाहर कितनी बड़ी वेटिंग है। या इसे छोड़िए, अभी थोड़े दिन पहले ही कोविड आया था, हॉस्पिटल्स की कैसी वेटिंग थी। हम्म लोग एक आदमी के मुंह से ऑक्सीजन जिंदे के मुंह से हटा के दूसरे के मुंह पे लगाई थी। हम्म मतलब ये चॉइस करनी पड़ी थी कि इसका चांस कम लग रहा है, उसमें चांस है, तो इसको तो अब मरने ही देते हैं, दूसरे के मुंह पे ऑक्सीजन लगा देते हैं। जहाँ हॉस्पिटल की ऐसी हालत है, हाँ, जहाँ ये हालात चल रहे हैं, आप बस समझिए यूपी और बिहार के अंदर तो सबसे वर्स्ट रेशियो है हॉस्पिटल पर बेड। 10 लाख के ऊपर 333 बेड, जो लास्ट मैंने फिगर पढ़ा था। हम्म मतलब पंजाब का था शायद 777। आई रेड अ बुक, सो अकॉर्डिंग टू दैट आई एम कोटिंग, आई डोंट नो, अब वो किताब छप के भी 2-3 साल हो गए होंगे, नॉर्थ वर्सेस साउथ ही बुक है। सो उसमें था कि अ पर्सन बोर्न, अ गर्ल बोर्न इन द साउथ will most likely live 10 years longer than her northern counterpart, व्हाई because जिस मोमेंट जिस हॉस्पिटल में हम पैदा होते हैं, जिस मैटरनिटी कंडीशंस में हम पैदा होते हैं, उस वक्त डिसाइड हो जाता है कि तुम लगभग कितने साल जियोगे, वाओ कौन सी उम्र में तुम्हें डायबिटीज़ होगी, मोस्टली कौन सी बीमारी से मरोगे। मोस्ट ऑफ इट इज़ डिसाइडेड दैट टाइम ओनली। तो 1050 कुछ बेड्स हैं 10 लाख के ऊपर, पर मिलियन पे 1050 बेड्स केरला या तमिलनाडु इधर है साउथ में। नॉर्थ में सबसे ज़्यादा पंजाब 777, और जो सबसे पॉपुलेटेड स्टेट्स है यूपी और बिहार। यूपी में 333, बिहार में शायद और भी कम, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इतना मुझे याद रहा किताब का, वही बहुत है। बट ये ऐसा व्हाई इज इट ऐसा कि डिपेंडिंग कि आपका बर्थ कहाँ पे है दैट विल सॉर्ट ऑफ डिटरमिन इज इट बिकॉज ऑफ लाइक
I have very limited understanding of this. Is this because of like gut microbiome? Because I was watching a documentary about how crazy relevant gut microbiome is in determining कि हमको कौन से diseases कैसे होंगे कब होंगे. And usually when we're in our mother's stomach and then when we given birth to, the gut microbiome is formed. And so I'm Correct. just wondering if there's some connection here. And there's a crazy scientific study that they had done with two rats. Okay. Both of the rats were the same. Now, एक को उन्होंने एक मोटे आदमी का gut microbiome. No, I laughed when I said that. I'm so immature. And they gave one मोटे इंसान का gut microbiome to one rat, and then they gave a really average healthy person का gut microbiome to the other rat. ठीक है? So both of the rats had all the same markers with their blood and everything, but the gut microbiome was different for both. फिर उन्होंने दोनों को सिर्फ एप्पल के डाइट पे डाला. सेम एक्सरसाइज, सेम एवरीथिंग, सेम एनवायरनमेंट, बट ईटिंग एप्पल्स. Then after the trial period, then they saw that the one that had the fat gut microbiome, that rat got really fat and unhealthy. And then the one that already had the healthy gut microbiome was of course healthy. So it's so fascinating to understand that हमारा जो gut का जो है biome, it really has an impact on everything. Also, there is a research about diabetes. So they are finding the solution to that. That a normal person's gut bacteria is different from a diabetic person's gut bacteria. So basically, uh, their feces is different from another person. Diabetics have different one. So they are trying to get normal person ka gut bacteria and they'll place it in the Yeah, diabetic that's person, and amazing. that's how they will remove diabetes. Yeah, This is one of the angles, like that's very medical interesting. science works in different angles. हाँ, So this is one of the angles how they are trying to Hmm. solve the problem of diabetes. That's amazing. There's so many things जो हम सीख रहे हैं and amazing Exactly. Also stuff. birth condition का ये भी था कि जैसे पहले दाई दाई होती थी ना, जो हाँ, कौन सा वुमन बोलते हैं इंग्लिश में, like a doula, ना, जो द वुमन हु हेल्प्स इन, midwife. हाँ, मिडवाइफ. हाँ, हाँ, तो वो करवाती थी बच्चे पैदा. हाँ, 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 वो बहुत सारे मर भी जाते थे उसमें. हाँ. बट Midwife मर जाते थे या बच्चे मर जाते थे? अरे बच्चे मर जाते थे वो. I thought midwife. Why will they Why are die? they dying? Why will they die while pulling a baby out? I think I would die from the stress. But but my grandmother used to pull babies out of the cows. We used to have cows at home in the village. So my grandmother used to do everything. She would milk the cow. She'd take the baby Oh, out. wow. She was active till her late 80s. She had black hair. She cooked her own meals, washed her own clothes. Amazing. She was a strong woman. हाँ. So yeah. So yeah, poor birth conditions. They are responsible for the diseases the baby will get later. Of So course. And you know, जो आप पहले कह रहे थे about, you know, there's so many other issues that are honestly, I feel much more pressing and impacting a lot more people. So it kind of made me realize कि कोई और agenda है, कुछ और है. You know, कोई लोग speculate कर रहे हैं कि it's a distraction from something else. यानी तो, you know, वो dog meat को अभी हमने मानवी राय से एक podcast किया था and she was suggesting कि you know, it's probably to legalize dog meat because उन्होंने कोशिश किया था 2 साल पहले वो बिल पास करने का to yes, commodify we had all dogs. opposed it. So, if you think about it, if they're trying a new tactic now to employ fear in the masses कि हाँ कुत्ते are problem, rabies, this, that, stories को skew करना ये वो, कुछ time के बाद ऐसे narrative को push करते रहो and you change public perception, then when they bring this bill back again, maybe it'll get adopted. तो we don't know कि क्या है agenda because if you think about it, right, जो आप कह रहे थे rapes, there's one rape every 16 minutes in India. To me, that is a more freaking like serious situation. और अगर हम यही logic apply करें, then shouldn't the men be rounded up off the streets and taken to a facility since they are a much bigger threat than the dogs? So I'm curious, why is the government not doing that instead of focusing on dogs? See, it's all about creating
The way things are working right now, everything is about creating a big event, massive event. Now, see, there is a chief minister in Delhi. She has put a petition for allowing some kind of crackers for Diwali. अरे पटाखे जलाने के लिए तुम्हें रोकना चाहिए। Allowing crackers for हाँ, Diwali. वो कि पटाखे जलाए जा सकें, इसके लिए सीएम इज आस्किंग द सुप्रीम कोर्ट के अलाउ करो, ग्रीन क्यों? क्रैकर्स तो क्या अलाउ कर दो। लोगों को क्या ये है वो ये क्रैकर्स को सिंबलिज्म है लेके? कि अभी अब ये मैंने बोला, अब इसी पॉडकास्ट के अंदर कमेंट्स में गालियां आएंगी, साले ईद पे क्यों नहीं बोलता, बकरे कटते हैं। बिकॉज एवरीथिंग हैज अनदर दिस थिंग, आई टेल यू। इसी देखो, हर चीज़ में आदमी एक एक स्टेप बढ़ता है। जैसे आई यूज टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, आई क्विट क्यों? फ्यू मंथ्स बैक ओनली। अच्छा। मैंने पहले अपनी लाइफ के 29 ईयर्स नहीं खाया। मैं उस फैमिली से आता हूँ जिसमें प्याज लहसुन भी नहीं खाते थे, जैन। ब्राह्मण्स, बट अच्छा अच्छा। हम लोग में नहीं खाते थे। तो मैंने नहीं खाया था टिल द एज ऑफ 29। देन माय B12 ड्रॉप टू 40। इट शुड बी मिनिमम 211 और 214 to 900 समथिंग। एंड सो आई वेंट टू द डॉक्टर एंड आई यूज टू फील दैट यहाँ मेरे सर के ऊपर ऐसा, मेरे सर जैसे डीप फ्रीजर में है, कान में CTC बज रही हो। हाँ, सो आई हैड अ माइनर सर्जरी। इट वाज नॉट रियली अ सर्जरी, बट मेरे बॉयल निकला था जिसका मुंह बाहर की जगह इनवर्ड था। सो दे हैड टू ऑपरेट हियर, स्मॉल ऑपरेशन ओनली। ओके। बट 8 महीने उसको लगे थे हील होने को। बट वो डॉक्टर ने शायद रिकवरी के लिए जो B12 वगैरह देना था मुझे दिया नहीं था। इट हैड ड्रॉप टू अ वेरी डेंजरस लेवल। Oh my God. Okay. So the doctor saw me and he was shocked. He said, "Hey, you could turn into a vegetative state any moment." So फिर उन्होंने मुझे 14 इंजेक्शन्स दिए थे 28 दिन में। हर दूसरे दिन पे एक इंजेक्शन था B12 का। देन माई लेवल्स केम टू नॉर्मल एंड देन, और वो फिर भी ड्रॉप होता रहा, वो बार बार मुझे लेने पड़ा। डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन, ऐसे वेजिटेरियन। सर वो कहीं से तुम खाया करो, वो डॉक्टर ने बोला था। देन आई स्टार्टेड हैविंग, but not even then I was not eating it too much. Even when I ate it, I had chicken, fish and eggs, and वो मैं हफ्ते में एक बार खाता था for medical purpose only, or when I was traveling then at that time I would eat for shows when I was outside. But बाद में फिर जब मैं ये डॉग्स वाले मैटर में बोल रहा था तो फिर लोगों ने मुझसे पूछा, तू कुत्ते तो बचा रहा, लेकिन ये बता तू वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। I had no answer to it. So I thought, I asked myself, यार अब इसका मैं क्या जवाब दूँ। अब मैं कमेडियन हूँ, मेरा काम है माइक हाथ में लेके 100 200 500 1000 लोगों के सामने जाके ऐसे खड़ा होना कि मेरे पास हर बात का जवाब है, तुम बोलो। पर ये लोग मुझे पूछ रहे हैं, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये गलत है, ये मुझे छोड़ देना चाहिए। बट डॉग्स को मैं अभी भी हफ्ते में 2 बार खिलाता ही हूँ। तो उसका मेरे पास अभी सॉल्यूशन नहीं है। उसका मेरे पास है। क्या जवाब है मुझे बताइए, क्योंकि मैं अपना तो बंद कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं प्रोसेस में आगे चल के मैं वीगन भी बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे मिल्क की वैसे भी क्या बात एलर्जी है। बोली! Oh my God, how नो, exciting! आपकी इसी पॉडकास्ट में ही मैं बता रहा हूँ कि मैं ऑन कैमरा ही आज वीगन बनने की तरफ जा रहा हूँ। हो सकता है आज ही से मन भी जाऊँ। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, वीगन बन गई तो बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। मैं तो देखिए, आज सुबह मैं अंडे तो खा रहा हूँ अभी, मैंने आज सुबह ही खाए थे। तो मैं सोच रहा था कि आपकी पॉडकास्ट पे आ रहा हूँ, आज काले चने भिगो दूँ। आज नहीं खाए जाए, बट आई इफ आई हैव द सॉल्यूशन टू इट, Yeah. because I have started taking that Neurobion for that medicine for B12. Yeah. I'll find a better something for B12. If that is taken care of, I'm good with being vegetarian, because for 29 years, if you're conditioned to be a vegetarian, you can be a vegetarian Absolutely. all your life. Absolutely. I became non-vegetarian because of the doctor suggested, and later I found out that even the doctor could be wrong, because वो इसने प्लस पॉइंट बताया, उसके माइनस पॉइंट्स नहीं बताए। So one thing I have learnt is that
doctors, when it comes to nutrition, unless वो अपने आप को educate करें और वो up to date रहें with the latest peer reviewed research और वो अपने ही biases से बाहर निकलें, they will misguide their patients. And I've seen it time and time again. And also, one thing I've realized and learned is that doctors receive 4 to 5 weeks of nutrition training in a 7-year course. Now imagine, उनको कितना मालूम होगा nutrition के बारे में? Because the amount of times I have also been to doctors and they've said to me कि oh, ये कम है या वो कम है, have meat, have dairy, have meat, that's their solution for everything, which is deeply illogical because it's like you're looking at one nutrient. Like let's say for example जो आप कह रहे थे B12, ठीक है, उन्होंने बोला कि meat खाओ, ठीक है, the meat will have B12 in it. But then they're not talking about cholesterol, they're not talking about saturated fat, they're not talking about hormones, they're not talking about antibiotics, they're not talking about endotoxins. It's like it's a very warped view of looking at nutrition. And you know, even when it comes to something like B12 जानवरों से नहीं आता है, B12 ज़मीन से आता है, which is a bacteria in soil. So the thing is now, I had a podcast with James Wilkes, who's the creator of Game Changers. I don't know if you've seen it. It's a documentary. It's very cool. Anyway, वो हमें बता रहे थे कि 40% of meat eaters in the US are deficient in B12. Now, अगर लोग इतना मीट खा रहे हैं, वो क्यों है deficient B12 में? प्रॉब्लम ये है कि जो सॉयल का क्वालिटी है अब मॉडर्न डे सोसाइटी में, जानवर भी जो खाना खा रहे हैं, जो भी वो ले रहे हैं, it's not enough B12. So the animals, all animals in factory farming are injected with B12. They're given B12 supplementation. तो अगर आप मीट खा रहे हो, you are getting second-hand supplementation from the animals. So you may as well just supplement yourself, na? It's the purest form of supplementation. So it's very interesting when doctors say कि meat खा लो B12 है. It's like जानवर are just like us. उनमें कभी B12 था ही नहीं. They got it from the source. In the same way, पुराने ज़माने में जब हम ज़मीन पे चलते थे, अपना खाना grow करते थे, we never had B12 deficiencies because we were not as sanitized. And when you're less sanitized, you naturally get B12 चीज़ें छूने से, खाने से, organic vegetables से. The bacteria is in everything. But इतना sanitized world में हम रहते हैं, we have to supplement, हम तो नाली में से unfortunately. गेंद उठा के क्रिकेट खेलते थे। Exactly. आजकल तो अभी ये वही हो मैं ही नहीं सोच रहा रहा है. हूँ कि B12 की Although कमी I हम don't तो know कि वो B12 नाली में मिल रहा है इंडिया में. I'm not sure. I Well, don't think वहाँ अरे से मैं तेज मिलेगा. फास्ट बॉलिंग करता था। आई यूज्ड टू रन अ लॉट बट ऑल्सो Exactly. आई रिमेम्बर नाउ क्योंकि वल्चर्स गायब हो गए Hmm. बिकॉज जहाँ मैं बरेली में मेरा स्कूल था, नैनीताल रोड एक बहुत खूबसूरत रोड है। अच्छा. तो जब मैं बच्चा था तब वहाँ सड़क के ऊपर धूप नहीं आती थी, इतने पेड़ थे ऐसे एक दूसरे से यूं दोनों साइड से ढके हुए बड़े पेड़, और इतने ऊंचे वल्चर्स वहाँ पे गिद्ध घूमते थे। Wow. हाँ, बाद में धीरे धीरे वो गायब हुए, अभी तो वो इंडिया से ही गायब हो गए हैं, कहीं एक आधी जगह हैं बिकॉज फिर वो जीएमओ क्रॉप्स आया, फिर वो जो जानवर ने Exactly. वो खाया, फिर उस जानवर को वल्चर ने खाया, उसमें कुछ Exactly. बीमारी थी, उनके अंदर का लिवर या किडनी कुछ फट गया Hmm. वो जानवर को खाने से, तो वल्चर्स इस तरह गायब हुए। वल्चर्स गायब हुए तो ये बीमारी गायब हुई। अभी लोग जो ये लोग बोलते हैं, इन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ जो कहते हैं ना कि ये गलियों से कुत्ते गायब क्यों नहीं कर दिए जाते, इन्हें सबको हटा दो। Hmm. भाई कुत्ते और बिल्लियां अगर तुमने गलियों से गायब कर दिए तो तो फिर प्लेग आ जाएगा। Yeah, of पास्ट course. में हुआ है ये, इसकी हाँ. स्टडीज हैं Hmm. कि इनको हटाओगे तो सड़क पे बंदर उतर आएंगे, Yeah. और बहुत छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो ये इनकी वजह से नहीं आते हैं वो आ जाएंगे। Hmm. कुत्ता तो फिर काटेगा तो बीमार होगे, प्लेग और बीमारियां महामारियां तो वो तो तुम कुछ नहीं करोगे तो हो जाएगी तुमको। Hmm. तो It's like a delicate ecosystem. You know, every creature जो है अर्थ पे उसका कुछ ना कुछ काम है, right? वही That contributes to the ecosystem. However, I feel कि एक species है जिसको हम उड़ा सकते हैं, उसमें कोई मतलब कुछ नुकसान नहीं होगा, that is humans. Because अगर वो चले गए ना तब earth will be sweet, it'll be set. कोविड के दौरान देखा था, हम जब गलियों से हट गए, हाँ. जंगलों से निकल के जानवर सड़कों पे आ गए, नदियों में पानी साफ हो गया, प्रकृति हरी Exactly. भरी हो गई। We are the problem. That is the thing. ये तो प्रकृति ने व्रत रखा था अपना कि चलो वही ये सिस्टम गंदगी को जरा हटाओ थोड़े टाइम के लिए। बेसिकली नेचर हमें थोड़े थोड़े टाइम बाद
हमारी जगह दिखा देती है। अभी और कुत्तों को होना है, एंड हटाया, आई होप कुछ कि किया, और कितने होगा। फ्लड्स आए, कितने लैंडस्लाइड्स अभी आए, उसका या जवाब है हमारे पास। या वो मैन मेड है, हम्म वो मैन मेड है। अभी कह रहे इतना प्यार आ रहा है तो इन सबको, डॉग्स को अपने घर ले जाओ। अब भाई मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, दो को मैं अपने घर ले आया हूँ, तो अभी आप भी अपना हिस्सा करो। अगर मेरा ऑप्शन होता, आई वुड लव टू टेक ऑल द, आई लव डॉग्स, आई वुड लव टू हैव 50 100 ऑफ देम। अगर मेरा, मैं इफ आई डॉग्स, कुड, काउस, डोंकीज मैं तो सब रखूंगा। everything I मेरे would take हाँ। them. बस people assume कि, and the amount of times मुझे comments ऐसे ही आते हैं कि तुम इतना बोलती हो डॉग्स के बारे में, तुम्हारे घर में 100 कुत्ते क्यों नहीं है, तुम्हारे पास इतना पैसा है। I'm like, अगर मेरे पास इतना पैसा होता, I would want 100 dogs in my house. That would be my dream. मेरा एक सवाल जो आप बताने वाली थी वो ये था कि डॉग्स को चिकन देते हैं, उसका क्या सोल्यूशन है? हाँ, मैं बताती हूँ आपको। हम्म, Oh my God. So I had a crazy podcast, okay, हम्म, with this dog nutritionist in London. ठीक है? She's one of the leading dog nutritionists in London, and she told me that, Amy, dogs should not be having any animal products. And I'm like, why? हम्म, And I was like, actually, I'm interested in this because आजकल के, आप किसी से भी बात करो जिनके पास कुत्ते हैं, their dogs are dying at 12, 13, 14 with like diabetes, cancer, kidney failure, जो भी है, right? किसी से भी पूछो जिनका कुत्ता मरा हुआ है. Why are dogs getting, मतलब that's not normal that that is happening, right? So then she explained कि dogs have, लोग सोचते हैं कि dogs are related to wolves, and wolves being carnivores, dogs are also carnivores. But dogs do not share wolves' ka DNA anymore because dogs have evolved with humans over the last 30, हम्म, 40,000 years. So what has actually happened, and this is where gut microbiome comes in, that dogs share, and it was 99 to 100% of human ka gut microbiome, which means dogs are pure omnivores like us. In fact, they are closer to scavenger herbivores than they are to omnivores. So basically, what I mean is dogs can ingest meat, but they don't. Their optimum diet is not meat. Their optimum diet is whole foods. So vegetables and legumes and pulses and whatever, jo bhi vegetables hain, is their optimum diet. So I tested this with my dog. Okay, so I've had many dogs over my whole life. I had 2 dogs in Australia. Both of them, one died at the age of 18, one died at the age, she's close to dying, touch wood she doesn't, but she's 19 now. Both of them have been plant based their entire life. And when I say plant based, it's nothing fancy. It's like literally जो भी सब्जियां हैं फ्रिज में, थोड़ा सा protein, so it might be textured vegetable protein, it might be tofu, whatever, सबको mix करके they have been eating their whole life. Blood is optimum, health is optimum, and then naturally dying of old age rather than any like actual issues. And I tried it with my dog Cookie also, who's a rescue, indie rescue. And so bachpan se hi, she has never had meat. And bachpan se hi, we boil for her beetroot, sweet potato, carrots, we mix in thoda brown rice, उसमें थोड़ा सा hemp seeds भी डाल दिया, उसमें थोड़ा सा हमने कभी कभी टोफू या टेम्पे या थोड़ा सा soy chunks काट के थोड़ा डाल दिया, या जो भी पड़ा हुआ है, we just put it in there, and she is so healthy and so happy. And so I've realized कि if I compare the two, it's like it's not necessary, but वो बहुत हमारे preconceived notions होते हैं कि vets बोलते हैं ना कि oh, you have to make sure your dog is having chicken, your dog is having this and that. But then when I look at what's in chicken, so the nutritionist explained to me that like humans, when dogs eat animal protein is high in what? Saturated fat. And saturated fat leads to high inflammation in dogs. And like with humans, so when you have a higher inflammation, you are leading to issues that are causing things like heart disease and all of these cancers and all of these things. And it's so interesting because it's the same thing in humans. India mein, the number one killer is heart disease. Heart disease is caused by what? Saturated fat. Saturated fat comes from every animal product. That's it. And so when we link everything back, it's like
Because even if humans have evolved to be able to have meat, I'm not saying हम meat नहीं खा सकते हैं, but we have evolved to scavenge a little bit of meat. Not कि जैसे हम अभी खा रहे हैं कि हर मील में हमें दही चाहिए, हर मील में घी चाहिए, हर मील में हमें ये चिकन चाहिए, blah blah blah, saturated. And I was learning recently that one standard North Indian meal is 150% over your amount of saturated fat that you should have in the entire day. Now, if you imagine हमारे मम्मी डैडी जो सब अपना खाना खा रहे हैं पंजाब में, इलाहाबाद में, कहीं पे मतलब घी भर के ये वो, and then we start to see their health declining in that 60 to 70 में ये दुख रहा है, No, overweight, 60 ये से वो 30s 30s में. 30s Right. में. We have So exceptions. We have some nannies and nanas that have gone on till 80, 90. see, Exceptions तो हैं. I have relatives who, if I said 15 years back, if somebody said they have passed away, I would have हाँ. been like, okay, इनको तो जाना था. Hmm. They are fit and fine in Bareilly. हाँ. They are killing it. Yeah. I mean, not killing anything. They are all vegetarian. Hmm. They are so. What was the point? One point I was listening to when you were talking, I wanted to say it. Yeah, we also eat a lot of salt. Of course. And also, yeah, now my dog Alpha, I have two Hmm. dogs, Hmm. Alpha and Beta. They're Oh, that's the twins. actual names. I thought you were describing their personalities No, when no. you were talking to me before. I was like, oh, which one is alpha, which one is beta? Okay. So I asked on Instagram only. I've got हाँ. these two. Hmm. इनके क्या नाम रखूं? Hmm. किसी ने लिखा इडली डोसा रख दो, किसी ने कहा कुछ रख Oh दो. my god, I love idli dosa So yeah, also. कितना so cute. somebody said Alpha, Beta, हाँ. and I named them that. हाँ. And so Alpha has a health condition, आपने बताया था. हाँ. called EPI. So he tends to lose weight, Hmm. but his weight, touch wood, is coming back Okay, because excellent. he is. अभी मैं उसकी डाइट में नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं Hmm. बिकॉज पहले मैं दे रहा था थोड़ी मूंग दाल, थोड़ा चावल, हाँ. उसके अंदर Hmm. पम्पकिन, कद्दू, Hmm. लौकी और कद्दू, लौकी और गाजर, Hmm. सांबर वाला जो गाजर होता है हाँ वो. हाँ हाँ. तो ये तीन मिला के और हल्का सा उस पे कोकोनट ऑयल डाल के Hmm. मैं देता हूँ, तो उसका वेट अभी इट्स कमिंग बैक. Hmm. अभी मैंने नॉन वेजिटेरियन उनकी डाइट से भी ऑलमोस्ट हटा दिया है, Hmm. बट पूरी तरह नहीं हटाया है. Hmm. बट ऑल्सो इंटरेस्टिंगली आई हैव अ पर्सन हु कुक्स फॉर अस, Hmm. me and Alpha Beta. He cooks for us. Hmm. The evening food I cook for them. Hmm. So this person comes from a community of fishermen Okay. in Bihar. हाँ. वो बोलता मैं मछुआरा हूँ. हाँ. So during COVID only he had gone to the village. He said, हाँ. I had the best time of my life. I went there, I swam in the river and I caught fish and this and that. He has stopped eating non-veg. Wow. He said that he works in all the Marwari houses here Hmm. nearby in Andheri. Hmm. Comes to my house for 1 hour and goes to another. He said that the chicken and everything is injected. There are so much injections in it that even if you believe you should eat non-veg, you should not eat. And this is being suggested by the person who can't read or write. Hmm. If I have to communicate with him through WhatsApp, he sends a voice note. So Wow. he knows it कि ये नहीं खाना है. Yeah. So I talk to these people who work. There's a lady who cooks for us, cleans the house. They tell they get jadi booty, patte. They know, they have better knowledge about these things. Hmm. Isn't that amazing? And they are fit. Huh. She walks 40 minutes to reach my house Wow. and works and walks back. Hmm. And this guy comes and this guy has stopped eating meat. He's Amazing. working. So these people know, and I also realized after I stopped eating that it's not mandatory to eat it, because in fact खाने के बाद एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट होती है, एक तो माइंड में भी होती है. मैं ये समझता हूँ कि वो जानवर जो मर रहा है वो बद्दुआ दे के जा रहा है, And I उसको wonder मारा कि जा रहा है और कितना उसकी नेगेटिव impact. एनर्जी आ रही है मुझ में. हाँ, that is what I feel कि at some level हो सकता है कि cellular जो memory होता है हमारे, I mean वो तो होता ही है, right? तो I wonder कि वो transfer कैसे हो रहा है? You know, there has to be something that is impacting on a very subconscious level. Hormonal changes आते हैं. When I see, 10th of December this year, it'll be 2 years of me not smoking. I quit Wow, smoking also. amazing.
I was a chain smoker. Wow. I used to smoke 60 to 80 cigarettes a day. I How was many a packets is that? chimney. I was a chimney. Oh my 3 God. to 4 It packets possible a भी day. कैसे है इतना? Like how 20. often would you, every like 20 minutes, every half an hour? There were times when I would be writing or having a coffee and working on computer. I'm smoking one cigarette. The cigarette is on the ashtray. I would light the other one. And I would realize, अरे दो जल गई एक साथ. Oh So my God. I was a chain smoker. Wow. So and I sometimes I smoked 100 also. Oh my God. But then I want to suggest everybody, don't smoke. मैं This is my 5th attempt at quitting, and this is the longest I've quit. So And I'm when did you say December? December 10th, 2023. I had my last cigarette. Oh my God. That was that day I had 5. The 5th one was the last. So, आप tempted नहीं होते हैं जब आप औरों को देखते अरे हैं बहुत जो मन करता है. इनफैक्ट हाँ कुछ दिन पहले बहुत मन कर रहा था लास्ट हाँ वीक. हाँ सो आई डिड माई रिसर्च. देर इज सो रिसर्च करके चीज़ छूटती है. 4 बार भी छोड़ा था फिर वो हो गया था. बिकॉज आई यूज टू डू अ टीवी शो एंड देयर आई हैड आस्क्ड एवरीवन. पहले मुझे लगता था कैसे मैं दूसरों से कहूँ कि तुम मत पियो. So, मुझे ये पता था कि अगर आप सिगरेट पीते हो या आप सिगरेट पीते हो या आप पीते हो, तो अगर मैं आपसे मिल रहा हूँ और मैं आपके सराउंडिंग में हूँ, तो आपके अंदर, आपके कपड़ों में, आपके बालों में निकोटीन का वो रह जाएगा. वो निकोटीन रिसेप्टर्स जो मेरी बॉडी में है वो उससे एक्टिवेट हो जाएंगे. आप मेरे सामने भी नहीं पी रहे हो, आप बाहर पी के आए हो या आप बाहर पी के आए हो, हाँ वो मेरे अंदर वो निकोटीन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे. हाँ अब मेरा मन करेगा कि मैं सिगरेट पीऊँ क्योंकि हाँ of आपने course. पी है. और मुझे पता नहीं, मेरा एक बार ऐसे ही हुआ था. तो वाज अ पर्सन हु यूज्ड टू कुक फॉर अस. वो हाँ बाहर जाता था, बार बार वापस आता था, वापस आया. मैं कहा यार कोविड चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है और मैं कैसे, ये मेरा बार बार मन कर रहा है. फिर वो एक दिन बाहर से लौट के आया. मैंने कहा इधर आना जरा. मैंने हाथ स्मेल किया, उसमें सिगरेट की स्मेल थी. आई सेड दैट्स द रीजन. wow. So there is a doctor called Eric Berg on YouTube Okay. and Insta also, Eric Berg. So he explained the science behind smoking. The same I think applies to non-vegetarian food also. Somewhere I have to do my research on that. So for cigarette he said that if you smoke, then nicotine receptors होते हैं. मान लीजिए मुझे एक कप आपको देना है, ठीक है. निकोटीन रिसेप्टर क्या करता है कि वो ब्रोकर का काम करता है. मान लो आप बीच में ब्रोकर बन गए, क्या मुझे एक कप आपको देना है, मैं दे सकता हूँ, पर ये अब ब्रोकर के थ्रू ही आप तक जाएगा. तो जो बीच में ब्रोकर है वो है निकोटीन रिसेप्टर. अब अगर आपको सांस लेनी है ऐसे, स्मोकर नहीं ले पाता, यहाँ तक जाती ही नहीं है. Oh. हाँ, वो उसको है कि वो उसका ब्रोंकाइल ट्यूब्स तभी खुलेगा जब वो कश मारेगा, तो उसे लगेगा Oh my अब God. मजा आया. Wow. सो देयर इज अ बुक कॉल्ड इजी वे टू क्विट स्मोकिंग. बहुत फेमस बुक है, वर्ल्ड बेस्ट सेलर है. इसमें बताया है सिगरेट हमको साइकोलॉजिकली बेची गई है. लाइक किसी का जॉब लग गया तो उसने कहा लाओ भाई, खुशी में जॉब चला गया, शिट यार सिगरेट. यू हैड सेक्स, इट वाज फन, ये बेचा गया. एक आदमी कहीं समंदर के बीच में है, उसके पास वो लकड़ी जोड़ के उसने नाव बनाई है, पानी के थपेड़ों में नाव जा रही है, उसके अपनी कपड़े भीगे हुए हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं है. बट जैसे ही उसको लगा मर जाएगा, फिर उसको एक सामने एक आइलैंड दिखाई दिया, कहीं से उसे एक बची हुई सिगरेट थी वो मिल गई. कहीं से उसने कुछ एक माचिस लेके उसे मिल गई और उसने जला ली. और फिर वो कहा अब मेरी जान बच गई. दुख हुआ तो सिगरेट सुख हुआ, तो सिगरेट नौकरी गई, तो सिगरेट नौकरी लगी, तो It's सिगरेट. like alcohol also, no? हाँ, हर तो चीज में same है उसे ना? उससे जोड़ दिया गया कि अब तो ये तो ऐसे ही होगा. अभी Because it's an लोग, emotional thing. It's an emotional connection to it, right? आई हैव अ फ्रेंड इन हिमाचल, उसने मुझे बताया वहाँ लोगों में बड़ी ये मान्यता है कि वो बकरे काटते हैं हाँ पहाड़ में, वो देवता को खुश करने के लिए, उनका रिलीजियस बिलीफ है. ऑफ लेट फिर वो बैन लग गया स्लॉटर पे, तो उन्होंने वो जिंदा बकरे नदी में फेंक दिए. Wow. भाई विच गॉड आर यू प्लीजिंग, ये जानवर को ऐसे. What God would want you to do this? Like honestly.
वही वो अभी फिर इसी पे सवाल यहाँ बकरे से जुड़ जाएगा बकरीद में, बिकॉज एवरीथिंग कनेक्ट्स टू इस धर्म पे बोल रहा तो इस पे बोल। तो भाई मेरा ये ऑन रिकॉर्ड कहना यही है कि मत काटो। क्यों तुम जानवर काट रहे हो? तुमने पाला है, तुम्हारा अगर धर्म में या बिलीफ भी है तो तुमने पाल के उससे इमोशन डेवलप करके अगर तुमने कर रहे हो और वो उस बिलीफ में है। और सिंबॉलिकली करो ना। ये सब जो रिचुअल्स हैं, हाँ, एवरीथिंग इज सिंबॉलिक। आप इतना लिटरली ले रहे हो और जाके इनोसेंट एनिमल को मार रहे हो। दिस इज नॉट नंबर वन व्हाट एनी, अगर हम कह रहे हैं कि गॉड जस्ट है, गॉड अच्छा है, अगर आप मानते हो गॉड में, then would any can this be associated with good? Like अगर कोई innocent animal है उसको आप मार रहे हो, that is not equal good, right? धर्म में लिखा भी नहीं है ना कहीं पे ये एग्जैक्टली exactly. बट कि लोग मान। अपना इंटरप्रिटेशंस लगा के कुछ भी ढूंढ लेते हैं। और अगर क्वेश्चन करो ना, देन दे से कि अरे बड़ी आ गई, हमारे रिलीजन को क्वेश्चन करने, हाउ डे यू नो रंडी दिस दैट, इट्स लाइक सीरियसली ये सब आता है। बट ये रिलीजन की बात नहीं है मेरे लिए। दिस इज़ नॉट कि आप हिंदू हो, आप क्यों काट रहे हो, आप मुस्लिम हो। दिस फॉर मी इज़ जस्ट अ ह्यूमैनिटी की बात है कि ये आपको नहीं करना चाहिए। इट्स दैट ब्लैक एंड वाइट। एंड एक्चुअली मैंने अभी साउथ इंडिया में एक देखा था जहाँ पे वो एक पिगलेट्स को अब करते हैं स्लॉटर। अब ये शुरू हो गया। अभी दिल्ली में, यहाँ अभी हम दिल्ली में थे, हमें एक नोटिस आया कि अभी एक मंदिर है जहाँ पे वो 100 पिगलेट्स आए हैं स्लॉटर के लिए मंदिर पे। मैं टाइम पे पहुंच नहीं पाई क्योंकि आई वांटेड टू फिल्म इट, उन लोग से बात करना, मैं पहुंच नहीं पाई टाइम पे। नवरात्रि के टाइम ये करते हैं ये सब। एंड मैंने एक वीडियो देखा था साउथ इंडिया से जहाँ पे वो पिगलेट को स्किन कर रहे थे अलाइव। पिगलेट चिल्ला रहा है एंड दे आर like ripping his skin off, and this is part of some religious whatever belief system, and I'm just like matlab मैं what are बस we आपको becoming? ये बताता हूँ, मैंने अभी कल ही शायद ये वीडियो देखा था। हाँ। पिग्स डेकोरेट देयर हाउस, यू नो mm, दैट? I saw the same video जहाँ पे वो वो it was पत्तियां take लेके उठा पत्तियां के आ लेके, रहा या है या और वो मौसम बदलता है तो वो अपना घर सजाता है। हाँ। और जिसमें ये जज्बात है कि वो अपना घर सजा रहा है, कितना स्वीट, दैट्स सो उसमें स्वीट। फीलिंग्स है यार, तुम उसे हाँ। कैसे काट रहे हो? और जितनी भी क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज मैंने देखी हैं उसमें क्रिमिनल क्या करता है, क्राइम की शुरुआत सीरियल किलर की भी कहाँ से होती है? वो सबसे पहले वो अपने से कमज़ोर को मारता है। हम्म। सबसे पहले जब वो मोस्टली वो बच्चा रहा होता है उसके ऊपर किसी ने वायलेंस किया होता है, फिर वो वायलेंस को कैरी फॉरवर्ड करता है। उसे लगता है कि उसे एज अ बच्चा पिन डाउन कर दिया गया था, अब वो उसे वही विक्टिम्स चाहिए जिनको वो पिन डाउन करे। पिन डाउन किसको कर सकता है? जानवर को, जो बात नहीं कर सकता। ये लोग बोलते हैं कि अरे तुम जानवर के बारे में बड़ा बोल रहे हो, ये तुम क्यों बोल रहे हो जानवर के बारे में? अरे भाई वो नहीं बोल सकता तो कौन बोलेगा? कोई आदमी तो बोलेगा ना। हम्म। उसके अधिकार के लिए कौन बोलेगा? मेरा वही तो कहना है यार, जिसके पास जिसकी आवाज़ कमज़ोर है उसकी आवाज़ मजबूत करो, या। जिसकी आवाज़ नहीं है उसकी आवाज़ बनो। हम्म। तुम्हें कुछ बुद्धि विवेक इसी दिन इसी के लिए तो दिया गया है कि इसका इस्तेमाल करके किसी और के काम आ जाओ। ऑफ वरना कोर्स। वो तुम क्या हो? वरना तुम जानवर, प्रकृति के अंदर हम सब क्या हैं? मतलब मैं अभी तक तो मैं ये सोचता था मेरे बियॉन्ड, मैं भी सेल्फिश ही आदमी हूँ, मैंने कुछ अपने बियॉन्ड कभी सोचा नहीं। मेरे को बहुत आपकी पॉडकास्ट पे बहुत रियलाइज सोल्स आते हैं, मैं तो बहुत मामूली आदमी हूँ। मैं ऐसे आया मेरे लाइफ में, डॉग्स भी कैसे आए मेरे पास। मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी एक्स वाइफ एक बिल्ली को ले आई, उसको हमें इलाज कराना था बट उसको कोई बीमारी थी। उसको पड़ोस की बिल्लियों से डर था, टॉम कैट्स ने टेरराइज किया था। उसके अंदर से पानी निकलता था, वो ओह। बॉडी में ऑर्गन्स में लिवर या कहाँ से वो पानी रिलीज़ करते हैं, वो डर जाते हैं ना, हाँ। तो वो पानी रिलीज़ होने लगता है। वो हम निकलवाते रहे कई बार पर वो जब कंडीशन आ जाती है तो वो बचते नहीं हैं। देन वी गॉट अनदर कैट, उसको हमने साल भर पाला। हम्म। फिर जब वो जवान हुआ तो वो अपनी जवानी एंजॉय करने भाग गया। वो हमारे कंट्रोल में नहीं आया। वो बेसिकली वो हमने घर में नहीं पाला हुआ था बट हमारा ग्राउंड फ्लोर का घर था तो पूरे इलाके की बिल्लियाँ हमारे घर में आती थी। देन वी हैड अ डॉग जिसको उसकी मदर ने अबैंडन कर दिया था बाकी पिल्लों से अलग, क्योंकि उसे उल्टी हुई थी, जॉन्डिस हो गया था। फिर हम उसको ले आए थे घर पे 25 दिन की। फिर उसको हमने पाला 2.5 साल तक, वो मेरे साथ रही। और हम्म। फिर उसके बाद व्हेन वी सेपरेटेड शी टुक द डॉग विद हर। आई in fact said take because you are attached to her also. हम्म।
देन आई गॉट दीज टू अल्फा बीटा आफ्टर दैट। सो तो उस तरह से मैं जानवर मेरे लाइफ में आए, अपने आप ही इंट्रोड्यूस हुए। मैं तो एक को ही लेने गया था, अल्फा को। वो दोनों खेल रहे थे पार्किंग लॉट में, तो मैंने फेसबुक से देखा था, मैं लेने गया थाने पलावा में। शी ग्राउल्ड एट मी, वो चलो तो इसको भी डालो गाड़ी में, अकेला क्या। बिकॉज आई रिमेंबर्ड दैट व्हेन आई यूज्ड टू वर्क एट होम, वैसे कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, वो यहाँ पैर रख लेती थी अकेले कि मुझे हाँ। अटेंशन दो। हम्म। अब मेरे पास दो हैं, तो अटेंशन भी वो एक दूसरे को भी साथ दे में खेल देते हैं, सकते तो हैं, ऑफ कोर्स। हमेशा मेरे हाउ हिसाब से स्वीट। तो दो पालने चाहिए। तो हाँ। जानवर मेरी लाइफ में खुद को इंट्रोड्यूस करके आए। हम्म। जब वो इंट्रोड्यूस हुए, मेरे को नहीं पता था कि आदमी अपनी हैप्पीनेस, अपनी सैडनेस ऐसे शेयर भी कर सकता है। हम्म। मेरा पूरे लाइफ में क्या था, एक घर की एक चाबी है, एक चाबी से घर खोला, घर में घुसे। पहले मैं दो जगह मेरे पास घर था, बोथ रेंटेड अपार्टमेंट, साउथ दिल्ली में भी था और बांद्रा में भी था। तो मैं कभी 15 दिन इस घर में रह रहा हूँ, 15 दिन उस घर में, घर खोल रहा हूँ, कभी वहाँ धूल जमी हुई है, कभी वहाँ धूल जमी हुई है। नाउ एटलीस्ट बिकॉज ऑफ देम, घर में एक डिसिप्लिन है कि एक आदमी, ऐसा भी नहीं है कि कहीं मरा ही पड़ा हो, पता ही ना चले लोगों को। हम्म। अब सुबह उठो आप, तो एक कोई डॉग वॉकर आता है उनको ले जाने के लिए, कभी मैं भी साथ में वॉक पे जाता हूँ, उनके लिए खाना बनता है, उनके लिए स्टाफ रखा है, तो मेरा भी काम बन जाता है। वरना मैं यहाँ भी पॉश सोसाइटी में जहाँ रहता हूँ, मैं मान आ रहा हूँ, हम्म। मैं तो एक कमरा किचन मेरे लिए बहुत है, हम्म। अकेले आदमी के लिए। बट मुझे लगता है कि जब बारिश आती है तो यहाँ पार्किंग में इनको चलाना अलाउड है, हम्म। तो ताकि ये रह सके, तो उसके वजह से मैं रहता हूँ। तो मे बी लक फैक्टर ऑल्सो वर्क्स। हम एब्सोल्युटली। बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि मेरे पास वो दोनों हैं। हम्म। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग मुझसे जुड़े हैं, क्योंकि दे सी माई लव फॉर देम एंड दे लाइक दैट अबाउट मी। वरना मेरे बारे में जानने के लिए क्या है, बहुत लोग चुटकुले सुनाते हैं, मैं भी सुनाता हूँ, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। हाँ। कुछ एक और आदमी घर से निकलेगा अपने लिए, कुछ हाँ। कमा के ले आएगा, मैं एक और बड़ी गाड़ी खरीद लूँगा, वो और शहर के जाम में फंस जाएगी, कितनी बड़ी गाड़ी ले लूँगा, हम्म। कितना बड़ा घर ले लूँगा, कितना बड़ा ईगो कर लूँगा। वो ओशो की एक कहानी थी ना, कि एक आदमी ने कहा, वो चक्रवर्ती सम्राट जो होता रहा, द किंग ऑफ किंग्स, वो सोने के पहाड़ पे अपना नाम लिखता है। तो वो किसी को वरदान दिया कि बोला मैं भी नाम लिखूंगा। जब वो वहाँ गया तो पता चला उस पे जगह ही नहीं है, सारे पहाड़ भरे हुए हैं। कह रहे इस ईगो वाले भी तुम जैसे बहुत थे इन द हिस्ट्री ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, उसमें तुम्हारे जैसे भी बहुत आए और बहुत गए। इतनी बड़ी ईगो वाले, इतने बड़े किंग ऑफ किंग्स भी इतने हुए हैं कि ढूंढ ले जगह, लिख ले कहीं। तो हम्म। उसे पता लगा, यार दिस इज ऑल्सो पॉइंटलेस, दिस इज नथिंग। हम्म। तो अब आदमी दुनिया में आया, खाया पिया, टॉयलेट गया, तो तुम दुनिया से बेसिकली टट्टी बनाने की मशीन बन के मत मर जाओ। कुछ करो अपने बियॉन्ड, समाज में कुछ ऐड करो, वैल्यू सोसाइटी में कुछ लोगों की लाइफ में ऐड करो। व्हेन आई डू स्टैंड अप, आई ऑल्सो टॉक अबाउट सोसाइटी, आई टॉक अबाउट अदर थिंग्स बियॉन्ड स्टैंड अप। हम्म। मैं उनको बोल देता हूँ, भाई मैंने तुमसे 1 घंटे के पैसे लिए चुटकुले सुनाने के, तुम घड़ी देख लो, मैं 1 घंटे तुम्हें हंसाऊंगा ज़रूर। लेकिन अगर मेरा शो उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा का है, तो उसमें मैं कुछ और ऐसी बातें भी बोलूँगा जो मुझे बोलनी है। उन बातों को बोलने के लिए मैं आर्टिस्ट बना, वो मेरे सोल से निकल रही है। वन फॉर द हम्म। किचन, वन फॉर द सोल। आई हैव या। डन द किचन बिट, नाउ इट्स वट एवर आई बिलीव इन। मैं तुम्हें बताऊंगा भी। और ऑल्सो ये भी है कि तुम ये ना कहो ना कि यार आगे चल के कि कुछ जो हमसे पहले की जनरेशन थी, ये कमबख्त लोग थे, आए अपना कमाया और मर गए, है ना। हम्म। तो वो हम्म। नहीं होना चाहिए। I want to read you out some comments that I got, okay? So, मैंने काफ़ी वीडियोस रिलीज़ किए थे इस डॉग सिचुएशन जब हुआ था, ओके, दिल्ली में। और काफ़ी वियर्ड वियर्ड डीएम्स हमको आए थे, आई एम श्योर आपको भी। सो एक मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है? इस जने ने हमसे कहा था, तुम कुतिया हो। हम्म, डॉग्स जब आपके बच्चे को काटेंगे तब पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट सही क्यों था। हाँ ये मुझे भी आए थे। मैंने तो ये सुधीर कुदालकर जी सीनियर इंस्पेक्टर हैं, उनके हम्म। वो प्रोटेस्ट में मैं गया था। आई हैड नो हम्म। इंटेंशन ऑफ गोइंग ऑन स्टेज, आई हैड गॉन देयर बिकॉज, ताकि
मेरा सपोर्ट भी वहाँ दिखे, लोगों को कहे कि मैं हम्म गया था, तो मैं रिकॉर्ड करूँगा और पोस्ट कर दूंगा कि देखो मैं खाली कीबोर्ड वॉरियर नहीं हूँ, मैं एक्चुअली ऑन द रोड। मैं गया वहाँ, उन्होंने मुझसे बोला आप बोलेंगे, तो मैं गया। मैंने वही पूछा कि अगर 1.5 साल का बच्चा गली पे तुमने छोड़ के रखा है, तो पहली बात ये बताओ कि इतना छोटा बच्चा गली में कर क्या रहा है। हम्म तुम इर्रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हो। इसके लिए मुझे बहुत गालियाँ आई कि ये बच्चों को हेट करता है, इंसान के बच्चों को। फॉर द रिकॉर्ड आई वांट टू टेल यू कि मैं, अगर आप मुझे एक चॉइस दोगे, वैसे तो ये चॉइस होनी नहीं चाहिए, मेरा नहीं, किसी भी का भी, मेरा तो है नहीं इंसानी बच्चा, जिसका भी है वो इंसानी बच्चा और डॉग, अगर मेरे पास चॉइस आएगी इनमें एक की ज़िंदगी बचा सकते हैं, मैं इंसान के बच्चे की ज़िंदगी बचाऊंगा उस सिचुएशन में, इन दैट सिचुएशन। बट अगर तुम ये कहोगे कि गली पे बच्चा छोड़ रखा है और उसको कुत्ता काट रहा है, तो तुम सारे कुत्तों की स्पीशीज ही गली से हटा दो, तो तुम मेंटली अनस्टेबल हो, तुम बेवकूफ़ हो, और तुम में 2 लठ पड़ने चाहिए, समझे। आई एग्री एंड ऑल्सो यू नो अ लॉट ऑफ द टाइम लोग कहेंगे कि कुत्ते काटते हैं, कुत्ते काटते हैं। कुत्ते लाइक ह्यूमंस ऑल्सो आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। अगर आप देखो लोग कुत्तों को कैसे ट्रीट करते हैं सड़क पे। मैं आपको र- इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। हम्म एक पुराना समय था ना, हमारे यहाँ कंपैशन था लोगों में। तो क्या था, एक पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, ये हम्म हर घर में बनती थी। हम्म समाज दो जो था ना, पूरा हमारा जो समाज था, हम्म हमारा समाज था होमोसेपियंस का। हम्म हम ये नियंडरथाल वाली पॉलिसी अपना रहे हैं, जो बीमार हो गया पहाड़ से फेंक दो, कुत्ता काट लिया सारे मिटा दो। तो हाँ नियंडरथाल्स कहाँ है, मिट गए ना। हम्म बड़े थे, तगड़े थे, गए दुनिया से भाई। हम्म कौन बचा, सामाजिक बचे। हम्म सामाजिक कौन थे, हम जो मिल के समाज के साथ रहने वाले थे। हम्म उस समाज के अंदर इंसान भी थे और जानवर भी थे, गाय भी और कुत्ते भी, दोनों के लिए एक एक रोटी बनती थी हर घर में। अभी क्या है, पूरे इलाके में कोई एक घर होता है हम्म जिसमें कोई एक डॉग फीडर होता है, या बड़ा एरिया है तो 2-3 होते हैं। या उन सबों को पागल और एबनॉर्मल बोलते हैं। तुम एबनॉर्मल हो, तुम भूल गए हो वैल्यूज भाई। वो नॉर्मल ही हैं, वो पुरानी प्रथा ही चला रहे हाँ हैं वो ही उनको। नॉर्मल है। ये तो गलत बात है एग्जैक्टली कि उस एक इंसान को 50 रोटी बना के बांटनी पड़ रही है। 50 घरों में एक एक रोटी बनती तो मच बेटर होता, या है ना। वो Okay, वो I'll tell you the next one. Oh God, these are all getting worse and worse. Um, hmm. मुझे तो गालियां आई, मैं पढ़ भी नहीं सकता। मैं सिर्फ अच्छी वाली गाली आपको बता रही हूँ, इससे कंसिडरेबली वर्स मुझे मिलता है, बट हाँ, तुम लोग बहुत घटिया हो। इतना सारा बोलते हो डॉग्स के बारे में। What about the children in Gaza? Do you not care about humans? वी डू, इनफैक्ट, एंड आई डू स्पीक अबाउट देम। मेरे को, मैंने उसके बारे में बात करता भी रहता हूँ। मैं अभी इनफैक्ट आपको बताता हूँ, अभी मेरा जयपुर और जोधपुर में शो था। परसों में मैं जोधपुर एयरपोर्ट पे था, और मुझे ये दिमाग में आया कि बच्चे खेल रहे थे वहाँ, बच्चे दौड़ रहे थे इधर से उधर। एक बच्चा अपनी छोटी सिस्टर उसकी थी, उसे छेड़ रहा था और वैसे करके दूर जा रहा था। शी वॉज ऑल्सो क्लैपिंग लाफिंग, दिस बॉय वॉज रनिंग अराउंड। आई डोंट नो हाउ, मेरे दिमाग में ये एक विजुअल आया कि कितना अच्छा सीन है, कितनी अच्छी जगह है, यहीं पे अगर एक रॉकेट लॉन्चर या बॉम्ब गिर जाए और इनमें से एक बच्चे का हाथ या पैर कट के मेरे ऊपर गिरे, या गिरे, या ये बच्चा फट जाए, या इसकी माँ का सर उड़ जाए, विभत्स विजुअल है। बट मेरे दिमाग में आया, सोचने में कितना हॉरिबल है, बट ये हो रहा है गाजा में। Just दिस इज, imagine. ये हमें सुनने में कितना अजीब लग रहा है। आप कहेंगे अब वो मैंने उनका कितनी रियलिटी हॉरिबल है। चीज़ सुनी है, हाँ लेकिन ये हॉरिबल चीज़ हो रही है। और वो इस जगह पे जो लोग हैं, उनमें से जो घायल हों उन्हें अस्पताल ले जाया जाए, फिर उस हॉस्पिटल में एक रॉकेट मार दिया जाए। हम्म तो ये तो दुनिया में हो रहा है। अब जैसे ही हम इसके बारे में बोलते हैं, तो फिर सडनली ये तो हिंदू विरोधी हो जाते हैं। भाई कैसे हो जाते हैं। मैं, अगर तुम हिंदुत्व की बात करते हो, तो उस पूरी उस सनातन की उस परंपरा में मैं तो ब्राह्मण हूँ यार। तो तुम मुझे ही उल्टा पुल्टा बक देते हो, तो बेसिकली तुम ना तो सनातन के पक्ष में हो, ना तुम ब्राह्मण के पक्ष में हो।
तुम हिंदुत्व के पक्ष में नहीं हो, तुम नहीं हो किसी चीज़ के पक्ष में, तुम हो सिर्फ अपने उस बिलीफ के पक्ष में जो तुम्हें पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बेच दिया है कि अगर ये ऐसे मुसलमान का बच्चा है तो इन्हें तो मरना ही चाहिए ऐसे। नहीं, Hmm. हमने इसी पॉडकास्ट में ये भी बोला है कि मुसलमान को बकरा नहीं काटना चाहिए, लेकिन हम इसी पॉडकास्ट में आपके सामने ये भी बोल रहे हैं कि जो मुसलमान के बच्चे मर रहे हैं गाजा में, वो बहुत बहुत हॉरिबल है, बहुत गलत है। Exactly, because it comes back down to humanity की बात है, religion की बात नहीं है, कोई भी चीज़ की वो बात नहीं है, it's बच्चा just देखिए, humanity. वो जो बच्चे थे, वो बच्चे बेचारे ये भी नहीं जानते कि अभी मौसम चेंज होके सर्दी आएगी। वो ये Yeah, नहीं कुछ नहीं जानते, जानते हैं. वो ना अभी तितलियों के पीछे उन्हें घूमना चाहिए, वो नहीं घूमे बेचारे, Yeah. है ना। उन्हें धूप हवा सर्दी अलग मौसम मौसम के नज़ारे, नाक में मौसम बदलने की खुशबू, अभी ये महीना अक्टूबर का चल रहा है, कितनी Hmm. अच्छी खुशबू आ रही है, मौसम हल्का हल्का सर्दी Hmm. का भी महसूस हो रहा है। ये बेचारे क्या सूंघ रहे हैं? बारूद की बदबू, बारूद की गंध इनको आ रही है। कुछ बच्चे इससे पहले के खेल पाएं, गली में चल पाएं, उससे पहले उनके चीथड़े उड़ जा रहे हैं। I wish there was a way to adopt one of those children. I wish there was some way. क्योंकि I mean मैं तो adopt करना चाहती हूँ, but I was like अगर ऐसा कोई बच्चा that इनका हाल इतना खराब है कि कोई opportunity नहीं है इनके लाइफ में, लेकिन yeah, obviously I don't know. इंडिया में इंसानों की हालत खराब है और मैं इस बात से हैरान हो जाता हूँ कि इस देश के अंदर कितने गरीब लोग हैं, कितने लोगों के पास खाने को नहीं है, और ये आईफोन के स्टोर में लाइन लग रही है, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो इकॉनमी बढ़ रही है, देखो ये फलानी गाड़ी के लिए वेटिंग लिस्ट चल रही है। तो तुम सिर्फ वो चमक देखना चाहते हो। लगभग 150 करोड़ लोगों के अंदर कितने लोग हैं जिनके पास वैसा पैसा है? बहुत कम लोगों के पास पैसा है। हम प्रिविलेज्ड हैं, बट हम वो प्रिविलेज एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमारी प्रिविलेज है, लेकिन हम उसके बियॉन्ड देख के ये भी देख रहे हैं कि समाज कितना बड़ा है। अभी ये Yeah. गांव में जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जिनके पेड़ कट रहे हैं, जिनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, ये कल को ये ऐसा थोड़ी कि नेपाल में क्रांति आई है तो यहाँ नहीं आ सकती। ये कहेंगे मुश्किल है, यहाँ की आर्मी तगड़ी है, यहाँ की पुलिस तगड़ी है, सब कुछ है, लेकिन भाई तुम अन्याय करोगे, तुम पैसा कमाओगे, तुम बहुत बड़ी गाड़ी ले लोगे, लेकिन गरीबी इतनी बढ़ जाएगी कि कोई उस गाड़ी में ईंट मार के तुम्हारे गले में चाकू मार के निकल जाएगा। Yeah. क्या कर लोगे? हम Yeah. इनके बारे में ही बात कर रहे हैं, उन्हीं में से कोई एक मेरे में मर जाएगा, क्योंकि वो थोड़ी जानता है मुझे Hmm. कि मैं इसके पक्ष में बोल रहा हूँ या कुछ भी है। So, totally different question. आपको लगता है कि इंडियन आदमी रिप्रेस्ड है इमोशनली? इंडियन आदमी रिप्रेस्ड है इमोशनली इंडियन एंड आदमी सेक्सुअली? हाँ. डिप्रेस्ड है, नहीं, डिप्रेस्ड नहीं, रिप्रेस्ड. रिप्रेस्ड हाँ. इमोशनली। हाँ. हाँ, बहुत ज़्यादा क्यों? कंडीशनिंग है ना यार। मर्द है यार, मर्द कैसे ऐसा बोला है? मर्द है, बड़ा मुझ पे ताव और ये क्या crap वाला। लड़की है क्या तू? रो रहा है क्या? वे सारे पागल, लड़की है क्या तू? या. ऐसे थोड़ी चलता है। तो वो बेचारा वो फिर बता नहीं पाता ना, तो उसमें रहता है, एक्सप्रेसिव कम है। एंड आई थिंक दैट ये जो फिर ये है, ये इमोशनल रिप्रेशन, सेक्सुअल रिप्रेशन, दैट इज देन रिफ्लेक्टेड इन हमारे कंट्री के स्टेटिस्टिक्स व्हेन इट कम्स टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इन टर्म्स औरतों को छेड़ना, जानवरों के रेप कर रहे हैं रेप्स. लोग। जानवरों को इतना रेप कर रहे हैं कि उन्होंने उसको क्रिमिनल ऑफेंस ही से हटा दिया, कुत्ते, क्योंकि इतना मुर्गी होता है. मुर्गी, मैं सरप्राइज था। मुर्गी को कैसे कोई रेप करेगा? आपने नहीं देखा वो मैंने वीडियो? नहीं दे. ओ माय गॉड. आई डोंट वांट टू से दैट हियर ऑन द पॉडकास्ट, बट कर रहा आदमी मुर्गी को। माय गॉड. उसको यहाँ पकड़ रखा है, बता देता हूँ आपको, वो ओ मुर्गी माय को ऐसे कर रहा है। गॉड, कैसे लोग हैं यार. मैंने एक देखा था अभी, एक कोई. इंस्टाग्राम पे था ये वीडियो। अच्छा. मैंने अभी देखा था एक कोई चंडीगढ़ में कोई गाय को कर रहा था रेप, और उसका दोस्त फिल्म कर रहा है उसको, एंड दे आर लाफिंग कि हाँ हाँ टेक इट, उसको स्लैप भी कर रहे हैं. घोड़ी, गधा गधी, बकरी बकरा, हम्म. सब नथिंग दे हैव लेफ्ट। अभी वो तो है, लेकिन अभी मैंने वो रील आपने लाइक की थी मेरी, मैंने देखा वो कि मैं हाँ. किसी से बात कर रहा था, मैं कहा ओ, तो वो लड़की बोली गे। मैं कहा देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग गे, बट आई एम नॉट। बट हाँ. वो फिर मैं वो एक्सप्रेशन कहाँ से आया? हाँ.
कि मर्द ने ये ओ वर्ड ऐसे कैसे बोल दिया। हाँ, because मर्द को any तो बोलना चाहिए ओ। ऐसे। exactly. So, okay, last question from me. Is there anyone that you don't like? Is there anyone That you don't like? I don't like? Hmm. सोचना पड़ेगा मुझे। Who do I not like? At present, um, people who have arrested Sonam Wangchuk, I don't like them. People who have spoken against dogs, these people in Delhi. I don't like Rekha Gupta, the Chief Minister of Delhi. I don't like Vijay Goyal, who's also from the same party. They speak against animals. The problem is that they have spoken. पता नहीं, शायद वो भी अंदर से उतने बुरे इंसान नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने वो बात जो बोल दी ना कि कुत्तों की समस्या है ये, तो हुआ क्या कि जो इतने रिप्रेस्ड लोग जगह जगह पे है ना, जिनके अंदर से और चीज़ों का गुस्सा था, वो गुस्सा उन्होंने जानवरों पे निकाल दिया, क्योंकि इन बड़े लोगों ने ये बात बोल दी। Hmm. अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो गया और फिर उन्होंने भी जो स्टेटमेंट दे दी। Hmm. अब क्या हो गया, इससे जो लोगों को फ्रस्ट्रेशन था उन्हें शह मिल गई। Yeah. क्यों, क्या होता है कि अगर अभी यहाँ पे कहीं कहीं रेवोल्यूशन आता है तो क्या करते हैं, रेवोल्यूशन में भी लोग क्या करते हैं, पहला शिकार कौन होता है? Hmm. औरतों के रेप होते हैं, बच्चे मार दिए जाते हैं, या स्लेव बना दिए जाते हैं। बेसिकली सब फ्रस्ट्रेटेड आदमी का शिकार कौन है? Yeah. जिस पे उसका बस चले। आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको किसी पे गुस्सा आया, आप देखो ऑटो वाला जा रहा है, आपसे कमज़ोर है तो आप कहेंगे ओए देख के चला, और आप वहीं आपने देखा कि वो तगड़ा है तो ओए ओए भैया देख के चलाओ। यू जस्ट एडिट इट Wow. Yeah, that's so true. राइट देयर। Yeah. सो द सेम थिंग अप्लाइज हियर। आपको अगर आप बड़े लोग हैं, आपकी थोड़ी सी भी सोशल इन्फ्लुएंस है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, थोड़ी बहुत मेरी है, थोड़ी बहुत आपकी, आपकी मुझसे ज़्यादा है, ऐसे बहुत सारे और हम लोग मिल मिल के हम भी अपनी तरफ से बिंदु बिंदु से सिंधु बनाए, अपनी एक एक बूंद से सागर बनता है, तो हम अपनी तरफ से अपना बिट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम इस टॉपिक पे बोलते हैं और मुखर होते हैं, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे तो नेगेटिविटी है ही, वो तो बहुत बड़ी है, रहेगी ही, हम उसके विपक्ष में ही रहेंगे। और एज अ कमेडियन भी हमारा काम स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर है। हम उसके ये नहीं कर सकते कि हम जो पावर में है उसके फेवर में ही बोलने लग जाएं। Hmm. देन फिर वो क्या कॉमेडी है, वो दरबारी विदूषक है, फिर वो कॉमेडियन थोड़ी है। Hmm. वो तो पैंडरिंग वाला आदमी हो गया, चापलूस चाटुकार, Correct. जिसमें तो इंडिया में लोग चैंपियन है, जिसमें तो खैर Yeah. अमेजिंग। तो वही है। Absolutely. Well, thank you so much, Sandeep. It's been great. I feel like I could just keep chatting or topics ko leke, but we have to wrap. Thank you so much Thank for you for joining having me. me. And now that you've become a vegan, that's great. आज से He's हाँ gonna hate me after this podcast. He's gonna be like, "अरे यार, मैं यार, कहाँ मैंने आ कहा था गया? मैं यहाँ क्यों आया?" भाई मैंने कहा था मैं कोशिश कर रहा हूँ वीगन की, मतलब वेजिटेरियन हो गया ये। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है. One वीगन step में at a कोशिश, time. देखो यार, मैं कभी चाय पीता दिख जाऊं, मेरी कोशिश है, वैसे तो चाय भी छोड़नी है मुझे, क्योंकि वो छोड़ना क्यों है? रिप्लेस कर दो मिल्क ना, ओट मिल्क डालो, यू विल हैव योर चाय। इसमें क्या है? अच्छा सही लगेगी। हाँ। ठीक है, फिर ओट मिल्क की चाय आज अंदर से से गाली, अंदर से गाली फॉर मी। कहाँ से आ गई चाय ऑस्ट्रेलिया से नहीं ये नहीं, आज से ओट जिंदगी मिल्क बर्बाद करने। ओट मिल्क चाय इट इज, एंड फ्रॉम टुडे चाय वैसे बंद करनी है मुझे। शुगर। हाँ, शुगर तो बंद ही है, हाँ। शुगर बंद है। मैं बहुत फिट होने वाला हूँ। ओ। अगली बार इस पॉडकास्ट पे आएंगे तो ओ। ऐसे मतलब लाइट कलर की शर्ट पहन के मैं एकदम ऐसे बैठूंगा, पेट निकाल के, और फिर भी तुम्हें पेट नहीं दिखेगा। ठीक है, 1 साल के बाद देखते हैं। 1 साल के बाद। या या 1 साल। थैंक यू सो मच संदीप, इट्स थैंक बीन यू एमी। ग्रेट। थैंक यू, थैंक्स गाइस।